आपके YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन पर स्वागत करता हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट मोर वीडियोस। हम 11th-12th मैथमेटिक्स महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अभी हम पार्ट 2 जो 12th स्टैंडर्ड बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड है उसके टेक्स्ट बुक को लेंगे। उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो कंटिन्यूटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी: ए फंक्शन f is said to be continuous at a point x equal to a if number 1 f is defined at x equal to a, f of a exists. Number 2, limit x tends to a minus f of x, comma limit x tends to a plus f of x exist, means left hand limit and right hand limit exist. And number 3, limit x tends to a minus f of x, left hand limit equal to f of a, value of the function equal to limit x tends to a plus f of x, right hand limit. If they all satisfy, then the function is continuous. If at least one of these condition is not satisfied, then the function is discontinuous at x equal to a. Discontinuity of a function: if the function f is not continuous at x equal to a, then it is called discontinuous at x equal to a, where a is the point of discontinuity of f of x. The discontinuity due to any one of the following reason: number 1, left hand limit or right hand limit or both may not exist. Number 2, left hand limit and right hand limit both exist but they are not equal. Number 3, left hand limit and right hand limit they both exist and they are equal but they are not equal to value of the function f of a. So there are two type of discontinuity. Number 1, removable discontinuity: a function f is said to be removable discontinuous at x equal to a if number 1, limit x tends to a f of x exists but not equal to f of a, limit not equal to value of the function. Number 2, limit x tends to a f of x does not exist. In this case, we can redefine this type of discontinuity and make the function continuous at x equal to a. Number 2, irremovable discontinuity: if left hand limit not equal to right hand limit, and that is limiting value does not exist, limit x tends to a f of x does not exist. This type of discontinuity cannot be redefined, so this function will be remain discontinuous. So this type of discontinuity is called irremovable discontinuity. Now हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है: एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट्स पे हमें डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, उसमें डिफाइन किया हुआ है कि एट x इक्वल टू 0 पे हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन दिया हुआ है 0 के लिए x इक्वल टू 0 इज़ 1, x नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। तो हमें गिवन है कि f जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। हमने इसको इक्वेशन 1 के नाम दिया। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है तो वैल्यू ली e की पावर 5x माइनस e की पावर 2x अपॉन साइन 3x। यहाँ से 2x हमने 5x में से 2x कॉमन लिया तो 3x बचा। यहाँ कॉमन लेने के बाद में 3x माइनस 1 और e की पावर 2x कॉमन आ गया अपॉन साइन 3x। हमने इसको 3x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिया तो e की पावर 2x, e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x और यहाँ पे e की पावर 3x अपॉन 3x।
अब ये सेपरेट हर एक लिमिट रख दिया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर 2x इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x और लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x, ये हमारा 1 हो गया और यहाँ पे ये भी 1 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल गई, और ये e की पावर 0 ये भी 1 हो गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स हमारा 1 आ गया। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें मिल गया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, दैट मीन्स विच अप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। नंबर 2, फंक्शन डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे ही वैल्यू चेक करनी है। एक्स इक्वल टू 0 के लिए हमें 100/3 दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। तो हमने इसको मार्क कर लिया है, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 है तो 100/3 आ गया। लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है दैट इज log 100 प्लस log 0.01 प्लस एक्स और अपॉन 3x। तो यहाँ पे log m प्लस log n दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला log m n, तो मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पे log 100.01 प्लस x आ गया, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे 100x आ जाएगा अपॉन 3x। तो देन इसके बाद में हमने यहाँ पे सेम 1 प्लस एक्स है, तो ये x यानी 100x हमें यहाँ बनाना है, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हमारे पास में 100x आ गया, दैट इज लिमिट बन गया हमारी लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 100x अपॉन 100x इंटू 100/3। ये 100/3 हम आगे ले लेंगे, ये जो फॉर्मूला बन गया लिमिटिंग फार्मूले में से ये 1 हो गया, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है एक लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज नथिंग बट 1, हमें मिल गया 100/3 लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। इसको हमने इक्वेशन 4 लिख लिया। तो इक्वेशन 3 और 4 से हमें मिल गया कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3 पे आते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 1 पे n स्क्वायर दे रखी है, नॉट इक्वल टू के फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो हमने इक्वेशन 5 में लिख दिया कि जब x की वैल्यू 1 रहेगी तो ये n स्क्वायर रहेगा, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ से हमने इसको लिखा फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू 1 लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, हमने इसको सिमिलर कर दिया कि x पावर n है तो 1 की पावर भी n। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि लिमिट एक्स टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये होता है n a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हमें मिल गया n 1 की पावर n माइनस 1 विच इज n विच इक्वल टू n। तो इक्वेशन इसको 6 मार्क किया। इक्वेशन 5 और 6 से हमें मिला कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो दिस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। फंक्शन डिफाइन है एट एक्स इक्वल टू 7 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, और x की वैल्यू 7 के लिए 7 दे रखा है, नॉट के लिए यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है। तो हमें इसको मार्क कर लिया एज इक्वेशन नंबर 7 कि वैन x इक्वल टू 7 है तो वैल्यू क्या है 7। जब लिमिट x टेंस टू 7 एफ ऑफ x, तो यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू रख ली लिमिट x टेंस टू 7 log x माइनस log 7 अपॉन x माइनस 7। तो हमने इसको यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, पुट x इक्वल टू 7 प्लस एच, देन x की वैल्यू 7 को इधर लेके आए तो x माइनस 7 इज h, एज x जब 7 होगा x की वैल्यू हम यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखी हमने, तो 7 माइनस 7 0 हो गया, तो h किसको अप्रोच करेगा, h अप्रोच टू 0।
तो यहाँ से हमें मिल गया कि लिमिट, अब लिमिटिंग वैल्यूज चेंज हो गई कि लिमिट h टेंस टू 0 और log x की जगह पे 7 प्लस एच माइनस log 7 अपॉन h। तो यहाँ से लिमिट log m माइनस log n, तो ये आप फॉर्मूला आ गया log m बाई n। तो यहाँ से log 7 प्लस एच अपॉन 7 अपॉन h। अब यहाँ इसमें से 7 कॉमन ले लिया हमने, log 7 कॉमन लेने पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिल गया 1 प्लस एच बाई 7। अब नीचे h है तो अपॉन 7 कर दिया और इंटू 7 कर दिया, तो यहाँ से log 1 प्लस एच बाई 7 अपॉन एच बाई 7 इंटू 1 बाई 7 आ गया। अब ये 1 बाई 7 कॉमन ले लिया, 1 बाई 7 इंटू, अभी हमारा फॉर्मूला बन गया कि लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस एच बाई 7 और h बाई 7। व्हेन h 0 का अप्रोच कर रहा है, h टेंस टू 0, तो दैट मीन्स h बाई 7 भी 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से सेम फॉर्मूला बन गया कि log x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज नथिंग बट 1। तो ये हमें मिल गया, दैट इज 1 बाई 7। तो इक्वेशन 8 में हमें जो वैल्यू मिली दैट इज लिमिट x टेंस टू 7 f of x is 1 by 7. Equation 7 और 8 they are not equal, so f of x is discontinuous at x equal to 7. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया x इक्वल टू 0 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन दिया हुआ है ई स्क्वायर ई पावर 2 और नॉट इक्वल के लिए वैल्यू दे रखी है। तो हमने इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 में लिख लिया कि जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या गिवन है फंक्शन की e की पावर 2। अब लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1 बाई एक्स। अब इसको हमने स्क्वायर किया और यहाँ पे रूट किया, यानी यहाँ पे स्क्वायर करके रूट किया तो 2 यहाँ से कैंसिल होता है, तो 1 प्लस 2x अपॉन 1 अपॉन 2x का स्क्वायर। अब ये हमारे पास में क्योंकि एक फॉर्मूला है, ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है कि 1 लिमिट x टेंस टू 0 है और 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स है, ये सिमिलर होना चाहिए पावर भी, तो ये e बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2x लेके आए। तो अब लिमिटिंग वैल्यूज लिमिट अंदर लेके गए, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1 बाई 2x, तो ये e बन गया और इसका स्क्वायर है तो ये e पावर 2 हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 10 दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 हमें मिल गया कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0, तो विच इम्प्लाइज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिमिलरली हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे 10 बाई 7 डिफाइन है और नॉट इक्वल टू 0 पे यहाँ पे वैल्यू दे की है। तो हमने जहाँ x इक्वल टू 0 10 बाई 7 इसको इक्वेशन नंबर 11 मार्क किया और लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x हमने जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कि लिमिट x टेंस टू 0 10 की पावर x प्लस 7 पावर x माइनस 14 पावर x माइनस 5 पावर x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x ऐसा दिया हुआ है। तो 10 पावर x के साथ में 5 पावर x को हमने लिख लिया, यानी इसको रिसफल किया, 10 पावर x माइनस 5 पावर x माइनस 14 पावर x प्लस 7 पावर x। अब यहाँ पे हमने 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 पावर x इंटू 2 पावर x और माइनस 5 पावर x एज इट इज रख लिया। ऐसे ही 14 पावर x को हमने 7 पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 7 पावर x है। अब एक ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 4x का जो कि 2 साइन स्क्वायर 2x रहेगा, 2 साइन स्क्वायर 2x रहेगा। अब यहाँ से हमने ये सब क्यों किया है, क्योंकि फैक्टर बना लेते हैं। अब यहाँ से 5x कॉमन आ रहा है तो 5x कॉमन ले लिया, 5 पावर x कॉमन ले लिया और बचा हमारे पास में 2 पावर x माइनस 1। ऐसे ही माइनस 7 पावर x कॉमन लिया
तो 2 की पावर x माइनस 1 बच गया, और नीचे में 2 साइन स्क्वायर 2x ही है। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, दैट इज 2 की पावर x माइनस 1 और 5 की पावर x माइनस 7 पावर x। अब हमने -1 और +1 कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि 5 की पावर x -1 किया और यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस दिया तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, -7 की पावर x -1। अब हमने यहाँ इसको डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से, तो एक x इधर दिया और एक x इनको दिया, तो 2 की पावर x -1 अपॉन x आ गया, और यहाँ पे 5 की पावर x -1 अपॉन x आ गया, और -7 पावर x -1 अपॉन x आ गया। और यहाँ हमने इसको फॉर्मूला बना लिया कि 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2x, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे फॉर्मूला बन गया हमारे पास में साइन 2x अपॉन 2x का। देन हमने यहाँ पे लिमिट्स रख दी, हर वैल्यू को लिमिट दे दी कि लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x -1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 5 पावर x -1 अपॉन x, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 7 पावर x 7 पावर x -1 अपॉन x। और यहाँ पे ये लिमिट आ गई, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x का स्क्वायर, ये 1 बन गया, और ये भी सब 1 बन जाएंगे। और ये जो वैल्यू है 2 इंटू 8, ये दो बार हो गई है लिख के, बट ये a की वैल्यू रहेगी 1/8 बाहर आ गया, तो यहाँ से 1/8 आ गया, और ये जो वैल्यू है ये फॉर्मूला, ये 1 आ गया हमारे पास में 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये फॉर्मूला है कि a की पावर x का, यानी a की पावर x -1 अपॉन x रहा, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ जाता है log 2 log 5 माइनस log 7। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया 1/8 इंटू log 2 और log 5/7। तो ये इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन 11 और 12 को कंपेयर करेंगे तो बोथ दे आर नॉट इक्वल। सो यहाँ से हमें मिल गया कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पे, जहाँ पे x इक्वल टू 0 पे -1 डिफाइन है। तो फंक्शन जो है जब x इक्वल टू 0 है तो -1 है, और नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि x इक्वल टू 0 एफ ऑफ x। सो लिमिट x इक्वल टू x टेंस टू 0 साइन x माइनस कॉस x दे रखा है, तो यहाँ पे लिमिट हमने रखी कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x। इसकी x की वैल्यू रखी साइन 0 माइनस कॉस 0, तो यहाँ से हमें 0 माइनस 1 मिला, क्योंकि साइन 0 होता है और कॉस 0 1 रहेगा। और यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको 14 मार्क किया, तो 13 और 14 से हमें बोथ वैल्यूज सेम मिली, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पे। 0 है तो 1 दे रखा है, 1 डिफाइन है, और नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 15 मार्क कर लिया कि जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और लिमिट्स फाइंड की, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x। तो यहाँ पे हमें दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 log 2 प्लस x माइनस log 2 माइनस x अपॉन 10x। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया log m माइनस n का, क्योंकि log m बाई n होता है, तो log 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस x। अब 2 हमने कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद में 1 प्लस एक्स बाई 2 और 1 माइनस एक्स बाई 2 हमें मिल गया log में। देन उसके बाद में हमने क्या किया, इसको वापस से log m माइनस n कर दिया, यानी log 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 10x। अब इसको मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 बाई एक्स से। सो 1 बाई एक्स से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स बाई टू और माइनस log 1 माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ पे 10x अपॉन x आ गया। अब यहाँ हम जो 1 बाई एक्स है ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो log 1 प्लस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू आया यहाँ पे, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड किया, तो मेरे पास में एक्स बाई टू आ गया। माइनस log 1 माइनस एक्स बाई टू, तो माइनस साइन माइनस एक्स बाई टू है, तो इसलिए माइनस टू से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो माइनस एक्स बाई टू और यहाँ पे माइनस टू, इस तरह से आ गया। अब मैं इस पे सेपरेट सब पे लिमिट रख सकता हूँ, तो ये जो 1 बाई टू है ये मैंने बाहर ले लिया, 1 बाई टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, log 1 प्लस एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू है, तो ये मेरे लिमिट का फॉर्मूला बन गया। देन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाई टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, log 1 माइनस एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 10 एक्स बाई टू, तो ये तो 1 बन गया 10 एक्स बाई टू, और हमारे पास में ये भी log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स रहेगा, तो ये भी 1 हो गया। तो यहाँ से 1 बाई टू इंटू वन प्लस 1 बाई टू इंटू वन अपॉन वन आ गया, क्योंकि दोनों फॉर्मूले से 1 1 हो गए। तो यहाँ से हमें हाफ प्लस हाफ 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 16 में मार्क किया। तो इक्वेशन 15 और 16 से हमें मिला कि दोनों वैल्यू सेम है, so which implies f of x is continuous at x equal to 0। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में हमें फंक्शन डिफाइन इसकी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है एट x इक्वल टू पाई बाई टू पे, जो कि x की वैल्यू पाई बाई टू है, तो वैल्यू हमें 3 दे रखी है, और नॉट इक्वल है तो फंक्शन डिफाइन है। तो हमें जो गिवन है वो ये है कि f ऑफ पाई बाई टू इज 3, तो हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 17 में। और लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू एफ ऑफ x, तो ये हमारे पास में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सेम लिमिट चेंज करेंगे, पुट पाई बाई टू माइनस एक्स इज एच, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एच। तो x की वैल्यू अगर पाई बाई टू है तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एच, और अपॉन में यहाँ पे एच स्क्वायर, क्योंकि पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में एच है, तो ये एच स्क्वायर आ गया। अब पाई बाई टू माइनस एच जो रहेगा वो आपका कॉस एच हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एच। तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रेशनलाइज कर दीजिए 1 प्लस कॉस एच अपॉन 1 प्लस कॉस एच से, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच आ जाएगा। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच अपॉन यहाँ पे 1 प्लस कॉस एच आ जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच आपका बन गया साइन स्क्वायर एच, और आपके पास में अब एच स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0, ये फॉर्मूला बन गया ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर एच की वैल्यू 0 रखेंगे, कॉस एच की वैल्यू 0 रखेंगे, तो वो 1 बन जाएगा। तो लिमिट हमने सेपरेट लिमिट दे दी, लिमिट दिया लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस कॉस एच। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया, और ये 1 प्लस 1 हाफ हो गया। तो हमें लिमिटिंग वैल्यू मिली लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज हाफ, इक्वेशन नंबर 18 में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लिमिट इक्वेशन नंबर 17 और 18 से कि ये जो वैल्यूज हैं बोथ आर नॉट इक्वल, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन डिफाइन है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पे। सो 0 पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा है, और यहाँ पे जो फंक्शन है x बाई मॉड x डिफाइन किया हुआ है। पहले मॉडुलस फंक्शन की हम डेफिनेशन से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर देखेंगे वो इक्वल है एट x इक्वल टू 0 पे, तो उसके बाद में हम फंक्शन की वैल्यू पे जाएंगे। बट यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन जो रहता है लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स रहता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो रहेगी आपकी लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स मॉड एक्स जो रहेगा, मॉड एक्स इज नथिंग बट माइनस एक्स,
तो यहाँ पे x ऑफ माइनस एक्स आ गया। अब x x कैंसिल हो गया तो आपके पास में -1 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इज -1। तो आपके पास में जो वैल्यू आई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज -1, इक्वेशन 19 रखा। अब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मॉड x की वैल्यू प्लस x रहेगी। सो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज x अपॉन मॉड x। सो यहाँ पे x अपॉन x आ गया, x कैंसिल, आपको 1 मिल गया। तो ये इक्वेशन नंबर 20 में आपको 1 मिला। बट 19 एंड 20 से हम पता चल रहा है कि बोथ आर नॉट इक्वल। इक्वेशन 19 एंड 20 दे आर नॉट इक्वल। सो हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज discontinuous at x equal to 0. So thank you very much for doing watching my videos, and do like, share and subscribe, being with us for latest new videos. So in the next video we are focus question number 1, 11, 12 and so on. So thank you very